اچھا جی، ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، 14 پارٹیسپینٹ آ گئے، تو اب ہم اپنے وعدے کے مطابق پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 14 اگست یوم آزادی ہے۔ ہمیں آزادی تو مل گئی مگر صحیح معنوں میں ہم آزاد نہیں ہو سکے۔ بہت سی زنجیروں نے ہم کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ کو یہ آزادی اور مجھے بھی یہ آزادی مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے، آمین آمین۔ ہماری یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ پروگرام کی صدارت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ آپ نے ساری دنیا میں نہ صرف پاکستان کی نمائندگی بطور سفیر پاکستان کے کی، بلکہ ہمیشہ ملک کی سربلندی کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی اور وطن کا نام روشن کیا۔ آپ کی ادبی خدمات اور آپ کے فسانے اور شعری مجموعے پڑھ کر لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں محترم جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے کہ آج کے مشاعرے کی صدارت فرمائیں۔ آپ نے یہ اعزاز مجھے تفریح کیا ہے، میرے لیے بڑی خوش نصیبی۔ جزاکم اللہ۔ پاکستان سے جو تعلق ہے ہمارا اور آپ سب کا، اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں تو نہیں رہتے، لیکن پاکستان ہمیشہ ہمارے اندر ہے۔ بالکل بالکل دھڑکتا رہتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن پاکستانی پاکستان۔ بہت شکریہ جناب غوری صاحب۔ اور اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ میں درخواست کروں گا محترم جناب باسل رضا بٹ صاحب کو کہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ان آیات کا اردو ترجمہ جو کہ سورۃ الانعام کی آیت 96 سے لے کے آیت 99 تک کی گئی تھی، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ بیجوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، بس تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ وہ صبحوں کا پھاڑنے والا ہے اور اس نے رات کو ساکن بنایا ہے، جبکہ سورج اور چاند ایک حساب کے تابع گردش میں ہیں۔ یہ کامل غلبے والا اور صاحب علم کی جاری کردہ تقدیر ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پا جاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس عارضی قرار کی جگہ اور مستقل حفاظت کی جگہ بنائی۔ یقیناً ہم نے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو معاملہ فہم سے کام لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پہلے سے نہیں دعوت دے سکتا، یہ اسحاق، لیکن اپنے ہمارے اسحاق عاجز صاحب ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا، پہلے سے میں بھول گیا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت، نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ جی اسحاق صاحب۔ انشاءاللہ العزیز، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب برا حضرات کو میری طرف سے آداب اور سلام۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضور خاکسار کی ایک نعت کے چند اشعار۔ ہے تمنا یہی جب ملیں وہ ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاؤں، ہے تمنا یہی جب ملیں وہ ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاؤں، تاب نظارہ جو لا سکیں گی وہ نگاہیں کہاں سے میں لاؤں، تاب نظارہ جو لا سکیں گی وہ نگاہیں کہاں سے میں لاؤں۔ ماشاءاللہ۔
راستے ہیں کٹھن دور منزل ہے بدن سوختہ پر بریدہ ہجر میں میرے دل پہ جو گزری میں وہ روداد کیسے سناؤں ہجر میں میرے دل پہ جو گزری میں وہ روداد کیسے سناؤں وہ ہے مختار و مالک جہاں کے میں گدا کے در کا سوالی ایک جھلک ان کے پانے کی خاطر جان و دل ان لوٹاؤں ایک جھلک ان کی پانے کی خاطر جان و دل ان کی راہ میں لوٹاؤں میں بنوں خاک قدموں کی ان کے وہ میری جان اس در پہ قربان میں بنوں خاک قدموں کی ان کے ہو میری جان اس در قربان ہے مقدر جہاں پہ سنبھلتے میں وہیں جا کے دھونی رمان ہے مقدر جہاں پہ سنبھلتے میں وہیں جا کے دھونی رمان مال زر سے جہاں کے بھی دیکھے لاکھ دیکھے رنگ زمانہ مال زر سے جہاں کے بھی دیکھے لاکھ دیکھے رنگ زمانہ سوئے طیبہ مجھے لے کے جائیں میں کہاں سے وہ اسباب پاؤں سوئے مجھے لے کے جائیں میں کہاں سے وہ اسباب پاؤں اے خدا التجا ہے یہ تجھ سے ہو تمنا یہ عاجز کی پوری اے خدا التجا ہے یہ تجھ سے ہو تمنا یہ عاجز کی پوری تو بلائے مجھے در پہ اپنے تیری رحمت اور بخشا جاؤں تو بلائے مجھے
در پہ اپنے تیری رحمت اور بخشایاں، رحمت اور بخشایاں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. بہت شکریہ جناب اسحاق صاحب، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہماری درخواست کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. بہت محبت آپ کی، بہت محبت آپ کی. تو اب میں صاحب صدر کی اجازت سے حسب روایت ایک غزل پیش کرتا ہوں. اس مشاعرے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضروری آپ نے کوئی کس طرح کا کلام پڑھنا ہے، یعنی وطن کے حوالے سے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دوسرا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں صدر صاحب کی اجازت سے کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. مسکائے میرا زخم جگر عید کہاں ہے، مسکائے میرا زخم جگر عید کہاں ہے، گھائل ہوئی ہے شوخ نظر عید کہاں ہے، گھائل ہوئی ہے شوخ نظر عید کہاں ہے، افسردہ سے ہیں بام اور در عید کہاں ہے، اب پوچھتے ہیں شام و سحر عید کہاں ہے. ویران ہوئے مسجدوں کے ممبر و محراب، ویران ہوئے مسجدوں کے ممبر و محراب، کیا ان کو عبادت کی فکر عید کہاں ہے. انسان پہ روا ظلم ہے انسان کے ہاتھوں، انسان پہ روا ظلم ہے انسان کے ہاتھوں، انسانیت کا جھک گیا سر عید کہاں ہے. اچھا حقدار تھے جس چیز کے سب سائل و محروم، حقدار تھے جس چیز کے سب سائل و محروم، تم لے کے گئے اپنے ہی گھر عید کہاں ہے. یہ عید کہاں کھوئی ذرا تم کو بتا دوں، یہ عید کہاں کھوئی ذرا تم کو بتا دوں، تم چھوڑ چکے اللہ کا در عید کہاں ہے. اور آخری شعر ہے، دیکھو تو ذرا خود کو حمیدی کی نظر سے، دیکھو تو ذرا خود کو حمیدی کی نظر سے، کچھ بھی نہیں پیر نہ سر عید کہاں ہے، کچھ بھی نہیں پیر نہ سر عید کہاں ہے، مسکائے میرا زخم جگر عید کہاں ہے، گھائل ہوئی ہے شوق نظر عید کہاں ہے. اور اب میں دعوت کلام دوں گا ایک ایسے شاعر کو کہ جن کا ایک مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکا ہے. ان شعر میں نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہوں. خوشبو جیسے چہرے من میں بستے ہیں، خوشبو جیسے چہرے من میں بستے ہیں، میں روتا ہوں وہ اندر سے ہنستے ہیں. تو دعوت کلام ہے جناب بابر عطا صاحب، اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. در صاحب کی اجازت سے، کتنوں کا لہو رزق ہوا صحن چمن کا، کتنوں کا لہو رزق ہوا صحن چمن کا، ایسے ہی گلابوں میں تو سرخی نہیں آئی، اچھا گلابوں میں تو سرخی نہیں آئی. اچھا بہت شکریہ. چند اشعار جو 14 اگست کے حوالے سے ہی ہیں. تیری خوشیاں میری خوشیاں، تیرا غم ہے میرا غم، واہ. تیری خوشیاں میری خوشیاں، تیرا غم ہے میرا غم، اے میرے پیارے وطن تجھ سے ہے میرے دم میں دم، اے میرے پیارے وطن تجھ سے ہے میرے دم میں دم. بہت شکریہ. دل تو تیرا ہے، تیرا ہو کر رہے گا عمر بھر،
दिल तो तेरा है, तेरा होकर रहेगा उम्र भर, जहाँ अगर देना पड़े फिर भी ना घबराएंगे हम, जहाँ अगर देना पड़े फिर भी ना घबराएंगे हम। और तेरे बदखाहों को ये मालूम होना चाहिए, तेरे बदखाहों को ये मालूम होना चाहिए, मुत्तहिद हैं आज भी हम सब्ज परचम की कसम, मुत्तहिद हैं आज भी हम सब्ज परचम की कसम। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि लाखों दुश्वारियां तेरी वफा की राह में, लाखों दुश्वारियां तेरी वफा की राह में, है यही अज़्मे जरी बढ़ते रहें आगे कदम, है यही अज़्मे जरी बढ़ते रहें आगे कदम। बहुत शुक्रिया। और मक्ता है कि प्यारे पाकिस्तान का बाबर है सबको एहतराम, प्यारे पाकिस्तान का बाबर है सबको एहतराम, प्यारी माओं की तरह ये सरजमी है मोहतरम, प्यारी माओं की तरह ये सरजमी है मोहतरम। तेरी खुशियां मेरी खुशियां, तेरा गम है मेरा गम, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझसे है मेरे दम में दम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बाबर अता साहब। मैं ये बताना भूल गया कि आप 2 अपने कलाम के नमूने पढ़ सकते हैं, तो एक और पढ़े। और अता जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल सामने आ गई, चंद अशार पर पेश करता हूँ। चेहरा बातें कर रहा है और नजर खामोश है, चेहरा बातें कर रहा है और नजर खामोश है, इन हसी लम्हों में भी वो बेअसर खामोश है, इन हसी लम्हों में भी वो बेअसर खामोश है। कर दिया दीवाना उसके एक ही दीदार ने, कर दिया दीवाना उसके एक ही दीदार ने, हो गए बर्बाद हम और जलवागर खामोश है, हो गए बर्बाद हम और जलवागर खामोश है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि इत्तफाकन उसके मिलने से मेरा गम बढ़ गया, इत्तफाकन उसके मिलने से मेरा गम बढ़ गया, क्या सबब है क्यों मुझे पहचान कर खामोश है, क्या सबब क्यों मुझे पहचान कर खामोश है। और बोल उठते थे कभी साकिन दरो दीवार भी, बोल उठते थे कभी साकिन दरो दीवार भी, कैसी वहशत है कि अब ये घर का घर खामोश है, कैसी वहशत है कि अब ये घर का घर खामोश है। और मकता है कि किस तरह पाऊंगा बाबर अपनी मंजिल का निशान, किस तरह पाऊंगा बाबर अपनी मंजिल का निशान, रास्ते पेचीदा तर हैं राहबर खामोश है, रास्ते पेचीदा तर हैं राहबर खामोश है, चेहरा बातें कर रहा है और नजर खामोश है, इन हसी लम्हों में भी वो बेअसर खामोश है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत उम्दा जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बाबर अता साहब। और अब मैं दावत कलाम दूंगा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इंटरनेशनल मेजबान होने के नाते मुझे। जी, आप कुछ कह रहे? कौन? बशारत? क्या? नहीं, बिशारत साहब कुछ कह रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ पहले, कोई मसला नहीं है। अगर उनकी ख्वाहिश है तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेजबानी हमारी कैनेडा की है, इसलिए अच्छा, नहीं ठीक है, याद करने पहले। मेजबान ही है सर, हमें मेहमान क्यों समझ रहे हैं आप? नहीं, चले ठीक है। बिशारत रिहान साहब का उनकी ख्वाहिश है तो उनका एक शेर में पेश करता हूँ कि हम जिंदगी पे गम का असर देखते रहे, क्या दौर है कि शामो सहर देखते रहे,
शरत रिहान साहब बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के जाने पहचाने शायर हैं और शायरों की जान, अल्लाह करे कि ये कोरोना से जल्द जान छूटे तो फिर से वो महफिल सजे, तो फिर इनको हम देखें मैदान अमल में इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी शरत रिहान साहब। जी मैं अर्ज करता हूँ जी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था सिलसिला, तो बस मैं जनाब सदर की इजाजत से जनाब सदर यौम आज़ादी के चंद इशार पेश करता हूँ और उसके बाद फिर गजल के। जी अर्ज किया है कि झूमो नाचो खुशी मनाओ यौम आज़ादी आया, झूमो नाचो खुशी मनाओ यौम आज़ादी आया, चारों जानब अपने वतन में कैफ का आलम छाया। यौम आज़ादी आया है लेकर प्यार के नगमे, यौम आज़ादी आया है लेकर प्यार के नगमे, हालो माजी मुस्तकबिल के गूंज रहे हैं लम्हे। आज खुशी के इस मौका पर धमक रहे हैं चेहरे सब चेहरे, आज खुशी के इस मौका पर धमक रहे सब चेहरे, सजे हुए हैं हर पेशानी पर खुशियों के सेहरे। अच्छा और शेर अर्ज है कि लुटी नजर आती है हमको अंधेरों की माया, नजर आती है हमको अंधेरों की माया, अपनी प्यारी धरती पर है आज उजाला छाया। वाह वाह। और शेर अर्ज है, ऐ प्यारो ये पाक वतन है इसको पाक ही रखना, ऐ प्यारो ये पाक वतन है इसको पाक ही रखना, जुल्मों सितम के आगे खुद को तुम बेबाक ही रखना। अपने वतन पर आज खुदा की रहमत का है साया, अपने वतन पर आज खुदा की रहमत का है साया, रंगो खुशबू रोशनियों का एक बादल है छाया। और मख्तार है टीवी लगा हुआ है जी, मैंने कर दिया म्यूट जी ओके जी। ऐ रेहान खुदा हम सब पर अपना करम फरमाए, ऐ रेहान खुदा हम सब पर अपना करम फरमाए, चांद सितारे वाला परचम सदा यूं ही लहराए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत नाचो खुशी मनाओ यौम आज़ादी आया, चारों जानब अपने वतन में कैफ का आलम छाया। बहुत अच्छा। शुक्रिया जनाब सदर, आपकी इजाजत से गजल की चंद इशार पेश करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा हुक्मरानों की तरफ होगा। इस अर्ज किया है कि बागबान रखता नहीं गर बागबानी का हुनर, बागबान रखता नहीं गर बागबानी का हुनर, फिर खजां का ही सदा कब्जा रहेगा बाग पर। है अमीरे शहर भी इस बात से तो बाखबर, है अमीरे शहर भी इस बात से तो बाखबर, हो रही है जिंदगी मजदूर की कैसे बसर। कोठियों में जो बसर करता है अपनी जिंदगी, कोठियों में जो बसर करता है अपनी जिंदगी, कब किसी की झोंपड़ी पर उसकी पड़ती है नजर। ये नवर कंडे साहब का जो है ना, वो कोई आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैंने म्यूट तो कर दिया उनको। कोठियों में जो बसर करता है अपनी जिंदगी, कब किसी की झोंपड़ी पर उसकी पड़ती है नजर। क्यों नहीं अपने वसाइल पर ही करते इन्हसार, क्यों नहीं अपने वसाइल पर ही करते इन्हसार, कब तक जिंदा रहोगे दोस्तों खैरात पर। और मख्तार है कि कल भी यार रेहान मेरे हौसले ये कम न थे, कल भी यार रेहान मेरे हौसले ये कम न थे, दुश्मनों के सामने हूँ आज भी सीना पर। बागबान रखता नहीं, बागबान रखता नहीं कर बागबानी का हुनर, फिर खजां का ही सदा कब्जा रहेगा बाग पर।
वाह 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 बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। और अब मैं दावत कलाम दूंगा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स कनाडा के सदर हैं, और माशाल्लाह जब से यहाँ तशरीफ लाए हैं बहुत ही एक्टिव, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो इस तरह, जैसे लंदन में राना साहब की मिसाल दे सकता हूँ, वो भी 24/7 वक्फ हैं, और माशाल्लाह शुएब नासिर साहब भी इसी तरह वक्फ हैं। और थोड़ा सा तारफ ये कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। अब उन्होंने एक टीवी चैनल भी शुरू किया है, उसके वो होस्ट भी करते हैं। बड़े खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने पेश किए, मैंने देखे हैं खुद भी। तो दावत कलाम है मोहतरम शुएब नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब आपने तो बहुत ज्यादा मुझे वो कर दिया, मैं तो सिर्फ यहाँ जो कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के ज़ेर साए कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ आपका ताउन है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का, और ख़ास तौर पर करामतुल्लाह गौरी साहब का। उनकी मौजूदगी में, उनकी सदारत में एक बार फिर मुझे मौका मिल रहा है कुछ कहने का। पाकिस्तान का बिलाशुबा हमारा एक बहुत प्यारा मुल्क है, हमारी वो पैदाइश है, हमने अपनी उम्र वहीं गुजारी है, और उससे जो मोहब्बत और अकीदत और जो कुछ भी है उसके साथ वो तो किसी सूरत कम नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल कुछ हालात और मामलात, कुछ ग्रुपों के कब्जे और कुछ जो चीज़ें हैं उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और ता क़यामत कायम रखे, और उसमें दोबारा खुशहालियाँ आए जिस तरह वो पाकिस्तान बना था और जो बनाने वालों ने जिस तरह उसको बनाया था। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। मैंने 1984-85 में जिस वक्त एक डिक्टेटर का दौर था, उस दौर में कुछ शेर कहे थे और आज मुझे याद आ रहे थे, तो अगर गौरी साहब इजाज़त दें तो मैं वो पेश करता हूँ। क्या? ज़ाकल्लाह। कि दरिया दरिया धूप खिली हो, सहरा सहरा मेह बरसे। दरिया दरिया धूप खिली हो, सहरा सहरा मेह बरसे। जब से हमने ख्वाब ये देखा, सच्चे ख्वाब को हम तरसे। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। सहरा सहरा मेह बरसे, जब से हमने ख्वाब ये देखा, सच्चे ख्वाब को हम तरसे। मक्तल वीरा बंद दरीचे, सहमे सहमे चौराहे। मक्तल वीरा बंद दरीचे, सहमे सहमे चौराहे। लोग घरों में जा बैठे हैं जालिम हाकिम के डर से। घरों में जा बैठे जालिम हाकिम के डर से। और शहर सबा से आने वालों, अपनी अना का ख्याल करो। शहर सबा से आने वालों, अपनी अना का ख्याल करो। रानाई की भीख न मांगो, मौजाए बादे सरसर से। रानाई की भीख न मांगो, मौजाए बादे सरसर से। मक्तल मक्तल दीप जलाओ, जिंदा को मिस्मार करो। मक्तल मक्तल दीप जलाओ, जिंदा को मिस्मार करो। जालिम जाबिर चेहरे आखिर हट जाएंगे मंजर से। जालिम जाबिर चेहरे आखिर हट जाएंगे मंजर से। और पाबा सलासिल करने वाले हंसते हैं मजबूरों पर। पाबा सलासिल करने वाले हंसते हैं मजबूरों पर। शीश महल में रहने वाले खेल रहे हैं पत्थर से। महल में रहने वाले खेल रहे हैं पत्थर से। और आजादी के सुंदर सपने अपनी जगह हैं ठीक मगर। आजादी के सुंदर सपने अपनी जगह है ठीक मगर। लोग तो पहले फुर्सत पाए भूखे पेट के चक्कर से। लोग तो पहले फुर्सत पाए भूखे पेट के चक्कर से। और कतरा कतरा सैलाबों की रूप कहानी लिखता है। वाह वाह। कतरा कतरा सैलाबों की रूप कहानी लिखता है। कसरे सितम को ढाना है तो आओ निकले सब घर से। वाह 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 वाह। कसरे सितम को ढाना है तो आओ निकले सब घर से। और किसी तरह तो नम हो, नासिर मिट्टी है जरखेज बहुत। वाह वाह वाह। किसी तरह तो नम हो, नासिर मिट्टी है जरखेज बहुत।
ابرے سے اگر نہ برسے تو خون کی بارش ہی برسے، ابرے سے اگر نہ برسے تو خون کی بارش ہی برسے، دریا دریا دھوپ کھلی ہو صحرا صحرا میں برسے، ہم نے خواب یہ دیکھا سچے خواب کو ہم کرسے۔ کچھ اور سنائیں۔ ہاں ایک اور سنائیے۔ ہاں یہ تو بڑا انقلابی کلام تھا۔ بس آپ کی اجازت سے میں نے کوشش کی، میں بہت عرصے کے بعد یہ میں نے کہا چلیں اب کہیں موقع ملا ہے تو پڑھ دوں۔ لیکن چوراسی 85 کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں جی، تو 85 میں تو جمہوریت واپس آ گئی۔ نہیں نہیں 85 میں نہیں، کرامت صاحب 88 میں انتقال ہوا ہے ضیاء الحق کا، 88 میں ہوا جی، 17 اگست میں تو آئی تھی وہ جونیجو صاحب کی حکومت۔ 85 میں جمہوریت بحال ہو گئی تھی، جنیجو صاحب وزیر اعظم جنیجو صاحب تھے، لیکن وہ زیر اطاعت وہ کرامت صاحب اس جمہوریت میں وہ شعر یاد آ رہا ہے، کسی کا ہے کس کا یاد نہیں، کہ اسے بھی زندگی کہتی ہے تو ہے زندگی دشمن، بسر جو دل کے ویرانے میں تیرے بات کی ہم نے۔ آج سے اگر آپ موازنہ کریں نا تو وہ دور بہت اچھا تھا، بہت بہتر۔ خیر چلیے شعیب صاحب، شعیب ناصر صاحب آگے چلیے۔ شعیب صاحب ایک اور غزل ہے، تو ویسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تو سنی ہوگی، میں بہرحال دوبارہ پیش کر رہا ہوں جناب صدر کی اجازت سے، کہ دلوں میں نفرتیں رکھ کر بھی مسکرانا تھا، دلوں میں نفرتیں رکھ کر بھی مسکرانا تھا، منافقت کا بھی انداز مخلصانہ تھا۔ واہ 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 واہ، دلوں میں نفرتیں رکھ کر بھی مسکرانا تھا، منافقت کا بھی انداز مخلصانہ تھا، اور اس ایک جرم پہ ڈھایا گیا تھا گھر میرا، اس ایک جرم پہ ڈھایا گیا تھا گھر میرا، وہ نعرہ لکھا تھا دیوار پہ مٹانا تھا، اس ایک جرم پہ ڈھایا گیا تھا گھر میرا، وہ نعرہ لکھا تھا دیوار پہ مٹانا تھا، سلی ہوئی تھی زباں اور بندھے ہوئے تھے قدم، سلی ہوئی تھی زباں اور بندھے ہوئے تھے قدم، مزاج شہر کا ہر چند باغیانہ تھا، مزاج شہر کا ہر چند باغیانہ تھا، واہ واہ، اور بات کہ موجے علم کے یہ اور بات کہ موجے علم کے نظر ہوئے، ہمارا کام ہوا میں دیے ہمارا کام ہوا میں دیے جائیں، یہ اور بات کہ موجے علم کی نظر ہوئے، ہمارا کام ہوا میں دیے جلانا، ہم نے دعائیں مانگی، یہ جرم ٹھہرا کہ ہم نے دعائیں مانگی، خلاف مرضی نہ لب ہلانا تھا، خلاف مرضی نہ لب ہلانا تھا، اور عداوتوں میں تھے پنہاں عجیب سے رشتے، عداوتوں میں تھے پنہاں عجیب سے رشتے، حریف جہاں وہ بنا یار وہ پرانا تھا، یار وہ پرانا، حریف جہاں جو بنا عداوتوں میں تھے پنہاں خلوص کے رشتے، حریف جہاں وہ جو بنا یار وہ پرانا تھا، اور جو ایک حرف صداقت زبان سے نکلا، جو ایک حرف صداقت زبان سے نکلا، ادھر تھا ناصر تنہا ادھر زمانہ، نکلا ادھر تھا ناصر تنہا ادھر زمانہ تھا، کیا کہنے تھا، منافقت کا بھی انداز بتا سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام۔ آواز مڑ کر آ رہی ہے، باز گشت کو ذرا دیکھیں کیا یہ باز گشت کیوں ہو رہی ہے؟ میوٹ کیے تھے تو بہرحال بابا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ اب نارتھ امریکہ کے ایک اور نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر جن کا ایک مجموعہ کلام آ چکا ہے، ان کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ جناب محترم جناب جنید اختر صاحب اپنے کلام سے بہت شکریہ۔ کرامت بھائی اجازت ہے؟
आप सबको सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। तो एक 4 लाइनें देख लें इसी हवाले से। इसका उन्वान है पाकिस्तान। जी जी। मेरा चमन वो ऐसा चमन है कि क्या कहूँ, मेरा चमन वो ऐसा चमन है कि क्या कहूँ, उसके हर एक दुख में भी लज्जत खुशी की है। मेरा चमन वो ऐसा चमन है कि क्या कहूँ, उसके हर एक दुख में भी लज्जत खुशी की है। मेरे सुखन के फूल महकते उसी से हैं, मेरे कलम में आज भी खुशबू उसी की है। वाह वाह। मेरे कलम में आज भी खुशबू उसी की है। और एक गजल के चंद शेर देखें कि एक बावफा की लाश थी यूं ही पड़ी रही, एक बावफा की लाश थी यूं ही पड़ी रही, खल्के खुदा भी साथ खुदा के खड़ी रही। अच्छा। एक बावफा की लाश थी यूं ही पड़ी रही, खल्के खुदा भी साथ खुदा के खड़ी रही, और हमसे भी हो सका ना कोई दूसरा सवाल, हमसे भी हो सका ना कोई दूसरा सवाल, वो भी तो एक बात पर अपनी अड़ी रही, वो भी तो एक बात पर अपनी अड़ी रही। और कल जब नजर पड़ी तो रखा झाड़ पोंछ कर, कल जब नजर पड़ी तो रखा झाड़ पोंछ कर, एक याद ताके याद में बरसों पड़ी रही। बहुत अच्छा। एक याद ताके याद में बरसों पड़ी रही, और आंखों में एक खार, आंखों में एक खारे मोहब्बत महीन सा, आंखों में एक खारे मोहब्बत महीन सा, सीने में एक मीख बड़ी सी गड़ी रही, सीने में एक मीख बड़ी सी गड़ी रही। और मर्जी के बरखिलाफ जो अख्तर हुआ तो फिर, मर्जी के बरखिलाफ जो अख्तर हुआ तो फिर, छोटे से इस सफर में मुसाफत बड़ी रही, छोटे से इस सफर में मुसाफत बड़ी रही। अच्छा। बावफा की लाश थी यूं ही पड़ी रही, खल्के खुदा भी साथ खुदा के खड़ी रही। वाह, बहुत अच्छा। और इजाजत हो तो एक गजल के चंद शेर और देख लें। जो थे कल तलक हम वही आज अब हैं, जो थे कल तलक हम वही आज अब हैं, लबों का तकाजा अभी तक वो लब हैं, लबों का तकाजा अभी तक वो लब हैं। और सबब आंसुओं का न रो रो के पूछो, सबब आंसुओं का न रो रो के पूछो, ये आंसू मेरे आंसुओं का सबब हैं, ये आंसू मेरे आंसुओं का सबब हैं। और दिले पुर हज़ी का ना हो दर्द शामिल, दिले पुर हज़ी का ना हो दर्द शामिल, तो नौहे भी मेरे सभी बेतरब हैं, तो नौहे भी मेरे सभी बेतरब हैं। बहुत अच्छा। और कहाँ तक लिए साथ पैरों को चलता, कहाँ तक लिए साथ पैरों को चलता, ये दोनों ही सारी थकन का सबब हैं, दोनों ही सारी थकन का सबब हैं। और खुदा आसमानों की वसत में तन्हा, खुदा आसमानों की वसत में तन्हा, जो बंदे ज़मीं पर है सारे ही रब हैं। बहुत अच्छा। खुदा आसमानों की वसत में तन्हा, जो बंदे ज़मीं पर है सारे ही रब हैं। और अभी तक है बाकी रिवायत हमारी, अभी तक है बाकी रिवायत हमारी, जो है बेअदब वो ही मीरे अदब हैं, है बेअदब वो ही मीरे अदब हैं। अभी तक है बाकी रिवायत हमारी, जो है बेअदब वो, जो है बेअदब वो ही मीरे अदब हैं। और पड़ा रोशनी का यहाँ काल ऐसा, पड़ा रोशनी का यहाँ काल ऐसा, बने आज सूरज अंधेरा नसब है, बने आज सूरज अंधेरा नसब है। तो खुदा दिन किसी को ना ऐसे दिखाए, खुदा दिन किसी को ना ऐसे दिखाए, वो दिन आ गए हैं कि मानिंदे शब हैं, खुदा दिन किसी को ना ऐसे दिखाए, वो दिन आ गए हैं कि मानिंदे शब हैं।
اور میں ڈرتا ہوں جن سے انہی پر فدا ہوں، میں ڈرتا ہوں جن سے انہی پر فدا ہوں، غضب کے ہیں تیور یہ تیور غضب ہیں، میں ڈرتا ہوں جن سے انہی پر فدا ہوں، غضب کے ہیں تیور یہ تیور غضب ہیں، اور خدا ہی تو دیتا ہے ذلت تو عزت، خدا ہی تو دیتا ہے ذلت تو عزت، زمیں پر کئی چاند اختر طلب ہیں، خدا ہی تو دیتا ہے ذلت تو عزت، زمیں پر کئی چاند اختر طلب ہیں، اچھا جو تھے کل تلک ہم وہی آج اب ہیں، لبوں کا تقاضا ابھی تک وہ لب ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شاندار جنید اختر صاحب، بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں، صاحب صدر کی اجازت سے میں چند اشعار نعت کے، میرا چونکہ دو پڑھنے تھے تو میں نے بھی ایک پڑھا ہے، تو میں صاحب صدر سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا رہے، خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا رہے، کبھی اندھیرا نہ چھائے سدا سویرا رہے، کبھی اندھیرا نہ چھائے سدا سویرا رہے، خدا کے بعد میرے دل میں تو ہی بستا رہے، خدا کے بعد میرے دل میں تو ہی بستا رہے، کبھی بھی بھول نہ پاؤں خیال تیرا رہے، اچھا جہاں میں بت شکنی ہی شعار میرا رہے، جہاں میں بت شکنی ہی شعار میرا رہے، خدا کے فضل سے جاری یہ کام تیرا رہے۔ یہ عرض ہے کہ ہوائیں لے کے میری خاک ہوں اڑے پھرتی، ہوائیں لے کے میری خاک ہوں اڑے پھرتی، میرا مدینے کی گلیوں میں ہی بسیرا رہے۔ آخری شعر ہے کہ جو میری تشنہ لبی کا مداوا ہو جائے، جو میری تشنہ لبی کا مداوا ہو جائے، وہ میرے سامنے ساقی تو جام تیرا رہے، خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا رہے۔ اب اس کے بعد میں ایک گیتوں کے شہزادے کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ ان کے 4 مجموعہ کلام آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت گیت وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ہیں۔ تو ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں کہ جانے جہاں تیرے بنا برباد ہے دل کا جہاں، آواز دے میرے صنم تو ہے کہاں، تو ہے کہاں۔ جناب اسحاق ساجد صاحب، جرمنی سے۔ ٹھیک ہے، نظم سنانی تھی، گیت ہی پیش کر دیتا ہوں۔ نہیں نظم بھی سنا دیں، پہلے گیت سنا دیں۔ اچھا چلو، ایک نظم ہے جناب صدر کی اجازت سے ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ یوم آزادی 14 اگست اس کا عنوان ہے کہ اشارہ ہے ہماری جان کا 14 اگست، یوم آزادی ہے پاکستان کا 14 اگست، خواب کی تعبیر یوں ہی تو نہ ہم نے پائی ہے، چھاتیوں پر ہم نے انگریزوں کی گولی کھائی ہے، قید کے دکھ بھی سہے جانوں کی دیں قربانیاں، تب یہ آزادی کی دولت ہاتھ اپنے آئی ہے، آج اپنا ملک ہے اپنی حکومت اپنا تخت، یوم آزادی ہے پاکستان کا 14 اگست، گر نہ بنتا یہ ٹھکانہ ہم بھی سب ہوتے وہاں، خون کی ندیاں بہا کر خوش جہاں ہیں دشمناں، تو ستم اپنوں پہ ڈھائے وہ ڈھاتے ہم پہ بھی، قتل کر دیتے ہمیں اور خاک کر دیتے مکان، یورشوں سے ظالموں کے اور ہی جاتے ہم بھی پست، ہو ہی جاتے ہم ہی پست، یوم آزادی پاکستان کا ہے 14 اگست،
और नाम पाकिस्तान पर भड़की थी कितनी आंधियां, एक हम थे और खाए और मुखालिफ थे हजारों दुश्मना, दिल में जो उठाई थी हमने बात वो होकर रही, आखिरश दखला दिया हमने बनाकर आशियां, आशियां भी आज है अपना सभी हैं मस्त मस्त, यौम आज़ादी है पाकिस्तान का 14 अगस्त, और सारे मुल्कों से हसी अपना ये पाकिस्तान है नए अंदाज उसके और निराली शान है, ये फकत धरती नहीं है हमारी माँ भी ये, इसमें अपनी धड़कने हैं इसमें अपनी जान है, हम सभी बेटे हैं इसके बावफा मादर परस्त, यौम आज़ादी है पाकिस्तान का 14 अगस्त। और अब आपकी इजाजत से गीत पेश कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना? आ रही। रास्ता न मंजिल कश्ती न साहिल, भटकेगा कब तक यहाँ दीवाने मुसाफिर, पतझड़ है तेरी कहानी, आंसू है दरिया का पानी, पतझड़ है तेरी कहानी, आंसू है दरिया का पानी, गम ने तेरे छीन ली है तेरी मस्त जवानी, तूने ही लूटा खुद अपने ही हाथों, अपना ही ये कारवां दीवाने मुसाफिर, किस्मत ने वो खेल खेला रह गया पंछी अकेला, किस्मत ने वो खेल खेला रह गया पंछी अकेला, दो ही कदम साथ चलते लुट गया खुशियों का मेला, टूट गई वो फूलों की डाली जिस पर था याशियां दीवाने मुसाफिर, माशाअल्लाह। दुनिया से करके किनारा जाए कहाँ गम कमारा, दुनिया से करके किनारा जाए कहाँ गम कमारा, हर एक मोड़ पर राह गुजर पर समझे किसी ने पुकारा, बदला जमाना लागा निशाना, घायल हुई तेरी जान दीवाने मुसाफिर, वाह वाह। ये भूले से शक दिल में ना लाओ, ये भूले से शक दिल में ना लाओ, न तो मत किसी पर लगाओ, न तो मत किसी पर लगाओ, तकाजा है इंसानियत का, तकाजा है इंसानियत का, कि रूठे हुए को मनाओ, जो दुनिया से जाए वो वापस न आए, मिले फिर न उसका निशान आने मुसाफिर, रास्ता न मंजिल कश्ती न साहिल। बहुत खूब, बहुत शानदार, मजा आ गया जी। भैया। मोहब्बत की किरण शम्मे हरम में जगमगाती है, मोहब्बत की किरण शम्मे हरम में जगमगाती है, ये वो नेमत है जो काशी को काबा से मिलाती है। क्या कहने भाई, वाह वाह। एक दिहाई से वो
कंदील शेर सुखन को रोशन किए हुए हैं और दिन रात यही एक लगन है कि अदब की खिदमत हो, मुशायरे हैं, किताबें लिख रहे हैं। माशाल्लाह 4 किताबें उनकी मंदिर आम पर आ चुकी हैं, अभी और भी कुछ प्रोसेस में है। तो मैं दावत कलाम दूंगा जनाब राना अब्दुल रज़ाक साहब को कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया साहब सदर की इजाजत से एक वतन के हवाले से पढ़ूंगा गजल छोटी सी। मेरे खुदाया मेरे वतन पर अजाब क्यों है, मेरे खुदाया मेरे खुदाया मेरे वतन पर अजाब क्यों है, ये 100 तरह की मुसीबतों का सिहाब क्यों है, ये खून बिखरा है हर गली में बशर का क्यों कर, कदम कदम पर ये हादसों का शिहाब क्यों है, ये वहशतों ने मेरे वतन में हैं डेरे डाले, हर एक मंजर में एक नया ही शराब क्यों है, कहीं पे अगवा हैं और डाके कहीं धमाके, ये कत्ल गारत गरी वतन में जनाब क्यों है, बड़ा सवाल है, कहीं पे नफरत की आंधियां हैं कहीं बगोले, हर एक दिल का ये अब तो टूटा ख्वाब क्यों है, मेरे वतन को न जाने किसकी नजर लगी है, सुकून गायब है तीरगी बेहिसाब क्यों है, है जीस्त करना मुहाल अब तो मेरे वतन में, है जीस्त करना मुहाल अब तो मेरे वतन में, मेरे खुदाया गरीब पर ही अजाब क्यों है, अजाब क्या है, जहां भी देखें है एक जहालत का दौर दौरा, जहां भी देखें है एक जहालत का दौर दौरा, कोई बता दे हर एक खाना खराब क्यों है, कहीं पे आफत है जल्जलों की कहीं शरारे, खुदारा सोचो खिरद पे रखा नकाब क्यों है, क्यों, बहुत अच्छा, ये रक्से अमवात क्यों है जारी वतन में आसी, करम करम हो अब तो मेरे खुदाया अताब क्यों है, अच्छा, खुदाया मेरे वतन पर अजाब क्यों है, बहुत अच्छा, ये 100 तरह की मुसीबतों का सिहाब क्यों है। वाह वाह, बस और नहीं पढ़ेंगे आप? नहीं जी, अच्छा चलें। और अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम वो सुनाती हैं और मुझे अफसोस है कि मेरे पास उनके कलाम का नमूना नहीं है। दावत कलाम दूंगा मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा, अपने कलाम से नवाजे। जो कि मेरे बराबर में बैठे हैं उनसे इजाजत। एक शेर कि ये जो देश से दूरी है, ये जो देश से दूरी है, ये तो बस जिस्मानी है। ये जो देश से दूरी है, ये तो बस जिस्मानी है। वो तो वहीं पे छोड़ आए हैं जो हिस्सा रूहानी है। वाह 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 वाह, छोड़ आए हैं जो हिस्सा रूहानी है। वाह, आपकी इजाजत से अगल के चंद अशार छोटी सी नज़म कहा गया है कि तो पढ़ने तो अगर वो परवीन सबा साहिबा को अनम्यूट कर दे तो फिर उनकी तस्वीर सामने आ जाएगी। हाँ, अगर म्यूट कर दे और उनको अनम्यूट कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये तो आ रही है नहीं, तो नजर आ रही है। देखिए सबा साहिबा अनम्यूट हैं, अनम्यूट गौरी साहब भी अनम्यूट है। आ रही है नहीं, अब ठीक हो तस्वीर भी आ रही है नजर। अब ठीक हो गया। जी जी चलिए, जब भी अपने वतन की बात चली, ये को आ गई है।
गौरी साहब को जब भी अपने वतन की बात चली उस निगारे चमन की बात चली, जब भी अपने वतन की बात चली उस निगारे चमन की बात चली, बात जब आई तेरी उल्फत की, बात जब आई तेरी उल्फत की, मेरे दीवानेपन की बात चली, मेरे दीवानेपन की बात चली। अच्छा, जब भी बदला चलन जमाने ने, जब भी बदला चलन जमाने ने, फिर से नक्शे कोहन की बात चली, जब भी बदला चलन जमाने ने, फिर से नक्शे कोहन की बात चली। जब भी पूछा किसी ने हाले दिल, सिर्फ रंजो महन की बात चली, जब भी पूछा किसी ने हाले दिल, सिर्फ रंजो महन की बात चली। और बात आई जो खुश कलामी की, बात आई जो खुश कलामी की, तेरे तर्ज़े सुखन की बात चली। और एक महक सी गुलों की फैल गई, एक महक सी गुलों की फैल गई, जब सबा से चमन की बात चली, जब भी अपने वतन की बात चली, उस निगारे चमन की बात चली। एक नज़्म है छोटी सी, कोई ऐसी सहर भी आएगी। आपकी इजाजत। जब जर जमीनों जर की खातिर झगड़े होना बंद होंगे, जब जर जमीनों जन की खातिर झगड़े होना बंद होंगे, जब रंगों नस्ल के पीछे जमी के टुकड़े होना बंद होंगे, जब माओ बहनों के आंचल के चिथड़े होना बंद होंगे, हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी, हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी, दहका कर जुल्म के दोज़ख को अरमान न झोंके जाएंगे, दहका कर जुल्म के दोज़ख को अरमान न झोंके जाएंगे, नादार का तन ढक जाएगा लाचार भी रोटी खाएंगे, नादार का तन ढक जाएगा लाचार भी रोटी खाएंगे, इंसान सभी इंसान होंगे सिक्कों में न तोले जाएंगे, हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। जब कागज चुनने वालों का झोला उजला हो जाएगा, जब कागज चुनने वालों का झोला उजला हो जाएगा, गलियों से चुना एक एक वर्क आखिर बस्ता हो जाएगा, गलियों से चुना। फिर पढ़े बहुत अच्छा, खूबसूरत। जब कागज चुनने वालों का झोला उजला हो जाएगा, गलियों से चुना एक एक वर्क आखिर बस्ता हो जाएगा, जब पूरी दुनिया वालों का बस एक खुदा हो जाएगा, हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी, हम आस लगाए बैठे हैं एक ऐसी सहर भी आएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। और पढ़ना चाहेंगी आप? भाई आप आपके ऊपर है, आप कहेंगे तो चला और पढ़ें। बेटे उनसे इजाजत ले लें, पढ़ते रहे आप, उनका हिस्से कभी पढ़ लीजिएगा। हाँ ये तो घर की बात है, घर की बात है आपके तो। चले एक पुरानी गजल पेश कर देती हूँ कि जब नया मोड़ लेने को थी जिंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी। क्या बात। जब नया मोड़ लेने को थी जिंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी, नाम उनका मेरे दिल पे कंधा किया, यूं मुझे जिंदगी जावेदां बख्श दी। और उसकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, ताकचों में दिए झिलमिलाने लगे। उसकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, ताकचों में दिए झिलमिलाने लगे। एक दिया जल उठा हुजरे कल्ब में, उसने उल्फत को सौते अज़ां बख्श दी। जिसने उल्फत को सौते अज़ां बख्श दी। और ये मेरे लिए खास शेर है अपने मुल्क के हवाले से कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान,
मेरी आंखें मेरे कान मेरी जुबान हाकिम वक्त ने रहन में रख लिए। मेरी आंखें मेरे कान मेरी जुबान हाकिम वक्त ने रहन में रख लिए। हाथ पैरों को कटवा दिया बेखता, पर ये ऐसा किया मेरी जान बख्श ली। क्या कहने, दोबारा पढ़ें। मेरी आंखें मेरे कान मेरी जुबान हाकिम वक्त ने रहन में रख लिए। हाथ पैरों को कटवा दिया बेखता, पर ये ऐसा किया मेरी जान बख्श दी। क्या कहने। हुस्न को दी अदा इश्क को दी वफा, हुस्न को दी अदा इश्क को दी वफा, इस तरह से मुसावात कायम हुई। इस तरह से मुसावात कायम हुई। जिनसे कायम मुसावात हो ना सकी उनको एक फिक्र सूदो ज़िया बख्शी। जिनसे कायम मुसावात हो न सकी उनको एक फिक्र सूदो ज़िया बख्श दी। और दौलते इश्क की थी फरावानियाँ, दौलते इश्क की थी फरावानियाँ, हिज्र का माल खुलकर खरीदा गया। दौलते इश्क की थी फरावानियाँ, हिज्र का माल खुलकर खरीदा गया। मेरी पलकों पे रोशन सितारे किए, इस तरह से मुझे क्या कशा बख्श दी। क्या कहने, बहुत अच्छे। दौलते इश्क की थी फरावानियाँ, हिज्र का माल खुलकर खरीदा गया। मेरी पलकों पे रोशन सितारे किए, इस तरह से मुझे क्या कशा बख्श दी। और खाक को खाक करना ही मकसद था जब, खाक को खाक करना ही मकसद था जब, किस लिए फिर जमीन पर खलीफा किया। क्या कहने। खाक को खाक करना ही मकसद था जब, किस लिए फिर जमीन पर खलीफा किया। नेकियों के लिए कम मलाइक न थे, हमको ये जिम्मेदारी कहाँ बख्श दी। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छे। और ऐसा बात हम तो गूंगी रियाया में थे, ऐसा बात हम तो गूंगी रियाया में थे, जुल्म के सामने लब हिलाते न थे। ऐसा बात हम तो गूंगी रियाया में थे, जुल्म के सामने लब हिलाते न थे। बोलना आ गया हमको हक के लिए, जब से उसने कलम को जुबान बख्श दी। बोलना आ गया जब से उसने कलम को जुबान बख्श दी। जब नया मोड़ लेने को थी जिंदगी, वक्त ने एक नई दास्तां बख्श दी। क्या कहने। ऐसा किया यूं मुझे जावेदा बख्श दी। बहुत अच्छी गजल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मायूसियों से ए खुदा बाहर निकाल दे, फिर से तमाम खुशियों को दामन में डाल दे। अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ एक ऐसे शायर को कि वो जब भी हमारे मुशायरे में आते हैं हमारा मुशायरा बहुत अच्छा हो जाता है माशाअल्लाह। और एक दर्जन से ज़ायद कुतुब के वो खालिक हैं। दावत कलाम है जनाब साले अच्छा साहब। क्या बात, अच्छा बहुत शुक्रिया निधि भाई। साहिब सदर की इजाजत। करामत भाई इजाजत मांग रहा हूँ आपसे। म्यूट हो गया, अनम्यूट करना तो इजाजत देंगे आपको। साहब अनम्यूट करना है अपना मोबाइल को। यौम आज़ादी और बाबाए कौम हज़रत मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जीना के हवाले से एक दुआया खाता है पेश करूं कि इलाही बागबां की मेहनतों की आबरू रखना, इलाही बागबां की मेहनतों की आबरू रखना, हमें दुनिया के आगे तू हमेशा सुर्खरू रखना। क्या कहना, माशाअल्लाह। हमारे कायद आज़म का जैसा भी एक तस्वुर था, हमारे कायद आज़म का जैसा भी एक तस्वुर था, वतन को मेरे ए अल्लाह तू वैसा रखना। वाह, वो बहु रखना, वो बहु रखना। अब एक मिनट कहाँ गया, मुखम्मस की शक्ल में नज्म हाजिर है। रिवायत से हटकर मुल्क के लोगों से बात की है, शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। तो नज्म का उन्वान है आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को।
पहला बंद है कि लफ्जों की मिसालों से कोई नक्श बनाएं, लफ्जों की मिसालों से कोई नक्श बनाएं, जुमलों को बनाकर चलो हम जश्न मनाएं। कुछ दीप जलाएं, चलो कुछ शम्म जलाएं। जिस दिल में चुभन रहती हो, इस दिल की चुभन को आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। अच्छा करता हूँ यहाँ पेश अभी तल्ख हकीकत, करता हूँ यहाँ पेश अभी तल्ख हकीकत। सब गौर करें इस पे तो होगी ये इनायत। अफसोस करूं जिस पे वो है कौम की हालत, अफसोस करूं जिस पे वो है कौम की हालत। अच्छा बातों में लगा लीजिए बस थोड़ा सा मन को, आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। बेचैन है दिल आज भी अनजानी खरिश्त से, अच्छा बेचैन है आज भी, बेचैन है दिल आज भी अनजानी खरिश्त से। कुछ अपनी तो कुछ अपनों की दिल आजार रविश से। मतलब हमें रिश्वत से और दादो दहिश से, भूले हैं जो अल्लाह को और उसके चलन को। आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। अच्छा बंद है। क्यों अहले वतन पास नहीं तुमको वतन का, क्यों अहले वतन पास नहीं तुमको वतन का। जर्रा नहीं भाता तुम्हें क्यों अपने चमन का। तुम जानते हो पालना बस अपने बदन का, आराम ही देते हो फकत अपने बदन को। अच्छा है आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। वाह वाह जोश में आओ अरे तुम जोश में आओ, जोश में आओ अरे तुम होश जोश में आओ। हुब्बल वतनी के सब आगोश में आओ, सोते ही रहोगे भी कुछ होश में आओ। माहौल पढ़ो दूर करो अपनी घुटन को। आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। अब जब कि मिली तुमको नई एक क़यादत, अब जब कि मिली तुमको एक नई एक क़यादत। तब उर्दू कला करते हैं जब इससे मोहब्बत, क्यों नहीं करते हैं तभी इसकी हिमायत। पहचान लो लोगो जरा इस रंगे चमन को। आजादी मुबारक हो सभी अहले वतन को। वाह 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 बहुत अच्छा। वाले से ही एक गजल के चंद अशआर हैं। करामत भाई मतलब क्या है देखिएगा कि हम बेकमाल हो गए वो बाकमाल हो गए, हम बेकमाल हो गए वो बाकमाल हो गए। इनकी मिसाल कहते थे वो बेमिसाल हो गए। क्या कहने। जिस दिन से बस में गैर में दस्ते सवाल हो गए, जिस दिन से बस में गैर में दस्ते सवाल हो गए। हम अपनी ही निगाह में रूब और जवाल हो गए। दिल की फकत दुआ ये थी कायम रहे जमाल शहर। दिल की फकत दुआ ये थी कायम रहे जमाल शहर। और ये हुआ कि आप तो शहरे जमाल हो गए। क्या बात। दस्ते जुनू की राह में क्या जाने क्या रास्ता, दस्ते जुनू की राह में क्या जाने क्या रास्ता। खुद से छुपाए फिरते हैं हम वो ख्याल हो गए। पहले ही से सवाबत अफलाक थे नजर में हम, पहले ही से सवाबत अफलाक थे नजर में हम। औजे फलक से गिर गए गिरदो में लाल हो गए। अपने बदन की आगही मुझको मिली तो ये हुआ, अपने बदन की आगही मुझको मिली तो ये हुआ। जो हौसले जवान थे वो सब बबाल हो गए। क्या है कि स्वालेह को चाहिए था क्या, स्वालेह को चाहिए था क्या, और क्या मिला इसे यहाँ। स्वालेह को चाहिए था क्या और क्या मिला इसे यहाँ। ये सोचते ही सोचते लम्हे निढाल हो गए। हम बेकमाल हो गए वो बाकमाल हो गए। इनकी मिसाल कैसे दे वो बेमिसाल हो गए। बहुत खूब। अच्छा साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा है बहुत खूब जनाब साले। अच्छा साहब बहुत खूब, बहुत शानदार कलाम आपने पेश किया। बहुत उम्दा कलाम सुना जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम।
भरते हैं दुरे शौक से दामाने जबी हम। ये भी 1 दर्जन से जायद कुतुब, बल्कि उससे भी जायद इनकी किताबें हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत शायरी, नज़में और गज़लें और बहुत कुछ। बहुत लंबे अरसे से यूरोप में मुकीम हैं और खूबसूरत शायरी करते हैं। दावत कलाम है मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, अपने कलाम से नवाज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पढ़ने का मौका दे रहे हैं। यूरोप में कहाँ हैं आप? साहब सदर की इजाजत चाहता हूँ। वो पूछ रहे कहाँ पे है यूरोप में? यूरोप में है कहाँ पे? शुक्रिया। लंदन में है शायद। लंदन में शायद। जी लंदन में है। करता हूँ एक नज़्म है, आज़ादी के हवाले से है। तमाम दोस्तों को आज़ादी मुबारक हो। अर्ज किया है कि जिस दिन को ए रफ़ीको आज़ाद हम हुए थे, जिस दिन को ए रफ़ीको आज़ाद हम हुए थे, अहले वतन से उस दिन सब दूर गम हुए थे। पैगाम दे रही है हमको वतन की उल्फत, पैगाम दे रही है हमको वतन की उल्फत, है तायरों पे लाजिम अपने चमन की उल्फत। शुक्रिया। हर शख्स पे अजीजों कुछ कर्ज है ज़मीन का, हर शख्स पे अजीजों कुछ कर्ज है ज़मीन का, आया है जो जहां से कहलाए वो वहीं का। ए साकिनाने आलम सब पर वफा है वाजिब, बहुत अच्छा मित्र। ए साकिनाने आलम सब पर वफा है वाजिब, तायर भी आशियां की है आफियत का तालिब। अच्छा, वाह 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 वाह। होती है हर किसी को मिट्टी अजीज घर की, होती है हर किसी को मिट्टी अजीज घर की, एहसान मंद होना फितरत है हर बशर की। अपने वतन से यारो होता है प्यार सबको, अपने वतन से यारो होता है प्यार सबको, कुए वतन ही देता है एतबार सबको। पहचान हर किसी की होती है बस वतन से, पहचान हर किसी की होती है बस वतन से, रिश्ता बना के रखना तुम भी संजमन से। अच्छा, शुक्रिया। आके वतन के तुम पे एहसान है हजारों, आके वतन के तुम पे एहसान है हजारों, अपने वतन पे देखो कुर्बान हैं हजारों। उसकी सदा ही यारो परचम बुलंद रखना, इसका सदा ही यारो परचम बुलंद रखना, कुर्बानियों की खातिर दमखम बुलंद रखना। ए हम वतन है लाजिम इसका निखार तुम पर, ए हम वतन है लाजिम इसका निखार तुम पर, सोचो जरा ए लोगो है क्या उधार तुम पर। उसने जहां में तुमको, इसने जहां में तुमको जो सुरखरू किया है, सोचो जरा कि तुमने बदले में क्या दिया है। लाजिम है हर किसी पर इस घर की पासबानी, लाजिम है हर किसी पर इस घर की पासबानी, इसके लिए मुनव्वर हाजिर है जिंदगानी। पैगाम दे रही है हमको वतन की उल्फत, है तायरों पे लाजिम अपने चमन की उल्फत। शुक्रिया। और पढ़े ना, और कुछ और अर्ज कर दूं?
جی پڑھیں. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے سخنور ہیں انور مسعود صاحب، آپ سب جانتے ہیں ان کو. ان کا ایک قطع ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سنا جانے والا جملہ انہوں نے کھوج نکالا تھا، اور میں نے اسی قطع کی یہ شرح بیان کی ہے، منظوم کیا ہے اس کو. تو صاحب صدر کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے ایک سخنور نے یہ موضوع خوب اٹھایا ہے، پہلے ایک سخنور نے یہ موضوع خوب اٹھایا ہے، ایک خبر اخبار میں دیکھی مجھ کو بھی یاد آیا ہے. یہ جملہ جو صدا سے گونجے دیش کے سب بازاروں میں، یہ جملہ جو صدا سے گونجے دیش کے سب بازاروں میں، جاری ہے مفہوم اسی کا سب افلاس کے ماروں میں. یہی ہے قائم ہر شعبے میں، یہی کام چلاتا ہے، بیچاروں کے منہ کا لقمہ دوجے منہ لے جاتا ہے. بہت سے لوگ انا والے ہیں، خودداری بھی سیکھی ہے، ان کے آگے بھی تم نے یہی حقیقت دیکھی ہے. اوپر کی ہے خوب کمائی بندہ جو سرکاری ہے، لگتا ہے کہ ہر افسر کے اندر ایک بھکاری ہے. بہت اچھا. اوپر کی ہے خوب کمائی بندہ جو سرکاری ہے، لگتا ہے کہ ہر افسر کے اندر ایک بھکاری ہے. فضل ربی سے نہ ان کے باغ کبھی بھی سوکھے ہیں، فضل ربی سے نہ ان کے باغ کبھی سوکھے ہیں، پھر بھی پیسوں کو وہ ترسیں بچے جیسے بھوکے ہیں. یہی الیکشن میں جملہ الفاظ بدلتا رہتا ہے، یہی الیکشن میں جملہ الفاظ بدلتا رہتا ہے، سارے کینڈیڈیٹوں کا یہ مطلب پورا کرتا ہے. یہی حکومت والے جملہ اپنے طور سے کہتے ہیں، یہی حکومت والے جملہ اپنے طور پہ کہتے ہیں، اس کے ہی مفہوم سے ہم کو قرضے ملتے رہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. گو یہ جملہ عام ہے لیکن یہ توہین ہماری ہے. گو یہ جملہ عام ہے لیکن یہ توہین ہماری ہے، جس کا نہیں علاج وطن میں ایسی یہ بیماری ہے. یہ جملہ اب سنو منور کانوں کو شرما دے گا، یہ جملہ اب سنو منور کانوں کو شرما دے گا، دے جا سخیہ راہ خدا تیرا اللہ ہی دوبارہ پڑھیں 2 لائنیں دوبارہ. کیا بات ہے، کشکول برداری کی مثال ہے. آخری 2 لائنیں پڑھیں دوبارہ. شکریہ. گو یہ جملہ عام ہے لیکن یہ توہین ہماری ہے، جس کا نہیں علاج وطن میں ایسی یہ بیماری ہے. یہ جملہ اب سنو منور کانوں کو شرما دے گا، دے جا صفیہ راہ خدا تیرا اللہ ہی بھوٹا. بہت اچھے، بہت اچھے، کمال کر دیا. بہت شاندار. بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ نے مجھے موقع دیا ہے پڑھنے کے لیے یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا ماشاءاللہ. واہ جی واہ. آپ نے محفل کو گرما دیا ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیا ہے. بہت شاندار. کیا آپ نے زبردست بیان فرمایا ہے. تو میں خالق ہوں ان گیتوں کا، ان نظموں کا، ان غزلوں کا،
जो समझ सको तो सोना है, जो परख सको तो हीरा है। ये कलाम है हमारे साहिब सदर का, और सारे दोस्त पढ़ चुके हैं, तो अब शम्मे महफिल उनके आगे है और उनके सामने कोई कैद नहीं कि वो कितना पढ़ना चाहेंगे। इजाजत बराबर से लेनी होगी। तो अब साहिब सदर से दरखास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कारवान शेर सफन के तमाम अरबाब हल्वाक जिन्होंने ये सोचा कि इस यौम इस्तक़लाल पर शेरी महफिल होनी चाहिए, और इस दौर में खुदा भला करे जूम बनाने वालों का, तो उन्होंने आयरों की मुश्किल आसान कर। बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये जब से पाबंदी लगी है जूम का सिक्का चल रहा है, और शोरा के लिए कितनी आसानी हो गई है कि दुनिया के दूर दराज मुल्कों में बैठे हुए शोरा एक दूसरे के साथ एक महफिल में जमा हो जाते हैं। धूम की धूम है जी। तो ये इसको वाकई कहते हैं नेमते गैर मुतरक्किबा। बेशक। 4 मिसरे सुनिए आज के यौम इस्तक़लाल के हवाले से, अपने पाक वतन के हवाले से। ऐ वतन तुझसे ही मेरी पहचान, ऐ वतन तुझसे ही मेरी पहचान, तुझसे मंसूब शान है मेरी। ऐ वतन तुझसे ही मेरी पहचान, तुझसे मंसूब शान है मेरी। तुझसे बाहर रहूं तो कुछ भी नहीं, बाहर रहूं तो कुछ भी नहीं, तुझसे बाहर रहूं तो कुछ भी नहीं, तुझसे ही आन बान है मेरी, तुझसे ही आन बान है मेरी। एक नज्म है जो मैंने चंद बरस पहले इसी यौम इस्तक़लाल के हवाले से कही थी। वो मैं इत्तेफाक से कल परसों अपनी पुरानी बयाज़ें देख रहा था तो मुझे नजर आ गई। उन्वान है मादरे वतन के नाम। सुनिए। हम तेरे रांदे दरगाह सही अर्ज़ वतन, हम तेरे रांदे दरगाह सही अर्ज़ वतन, फिर भी मिट्टी को तेरी खाक इरम जानते हैं, फिर भी मिट्टी को तेरी खाक इरम जानते हैं। अच्छा। नाम सुन लेते हैं तेरा तो तेरे दीवाने, नाम सुन लेते हैं तेरा तो तेरे दीवाने, ऐसे खिल उठते हैं जैसे कि तेरे नाम के साथ, ऐसे खिल उठते हैं जैसे कि तेरे नाम के साथ, हमको जन्नत से बहारों का सलाम आया। जन्नत से बहारों का सलाम आया। वाह वाह। हमको जन्नत से बहारों का सलाम आया। क्या कहना। हम तो ये जानते हैं ऐ मेरी मादर गेती, हम तो ये जानते हैं ऐ मेरी मादर गेती, अर्ज़ मशरक़ हो के मगरिब वो अजम हो के हिजाज। हम तो ये जानते हैं ऐ मेरी मादर गेती, अर्ज़ मशरक़ हो के मगरिब वो अजम हो के हिजाज। हम हर एक गांव तेरी सिमत खींचे आते हैं, हम हर एक गांव तेरी सिमत खींचे आते हैं, तेरी खुशबू में बसा होता है जो मिलता है, तेरी खुशबू में बसा होता है जो मिलता है, तेरा कलमा जो पढ़े उसके ही हो जाते हैं, तेरा कलमा जो पढ़े उसके ही हो जाते हैं। और ये जो मैं कह रहा था कि मैंने तो आँख खोली है पाकिस्तान के साथ, तो आँख खोली थी तेरे नाम को सुन के वतन, आँख खोली थी तेरे नाम को सुन के वतन, पहला पैमाने वफा उससे किया था हमने,
वाह वाह वाह, क्या कहना। पहला पैमाने वफा तुझसे किया था मैं। हाँ, वही अहद वफा आज तलक बाकी। वाह वाह, हाँ, वही अहद वफा आज तलक बाकी है। तेरे इरफान में पिन्हा है जवाज़े हस्ती। तेरे इरफान में पिन्हा है जवाज़े हस्ती। तुझ पे ईमान है तो तुझ पे ईमान है तो हम भी दिए जाते हैं। आज एक अहद नया करते हैं है अर्ज़ वतन। आज एक अहद नया करते हैं अर्ज़ वतन। हम कहीं भी मरें, मिट्टी में कहीं की भी मिलें। हम कहीं भी मरें, मिट्टी में कहीं की भी मिलें। हाँ, मगर हश्र में उठेंगे तेरे नाम के साथ। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, कामल भाई क्या करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। हम अदा कहीं कीजिए, बहुत उम्दा। मिट्टी में कहीं की भी मिलें। हाँ, मगर हश्र में उठेंगे तेरे नाम के साथ। हम तेरे रांदाए दरगाह सही है अर्ज़ वतन, फिर भी मिट्टी को तेरी खाके इरम जानते हैं। क्या गजल सुनना चाहें तो चलिए गजल भी सुना दूं मैं आपको। फरमाइए। हाँ, सुनिए। किताब जीत के औराक जब पलटता हूँ, किताब जीत के औराक जब पलटता हूँ, कई वरक हैं कि जिन पर बहुत अटकता हूँ। किताब जीत के औराक जब पलटता हूँ, कई वरक हैं कि जिन पर बहुत अटकता हूँ। बहुत से चेहरे उभर आते हैं निगाहों में, बहुत से चेहरे उभर आते हैं निगाहों में, वो जिनकी दीद को शामो सहर तरसता हूँ। वो जिनकी दीद को शामो सहर तरसता हूँ। तो शेर देखिए कि पलट के अब वो जमाने न लोग आएंगे। पलट के अब वो जमाने न लोग आएंगे। ये जानता हूँ मगर आपसे उलझता हूँ। ये जानता हूँ मगर आपसे उलझता हूँ। वो मेरा यार कहाँ खो गया खुदा जाने। मेरा यार कहाँ खो गया खुदा जाने। उसी की खोज में जीता हूँ और मरता हूँ। अच्छा, की खोज में जीता हूँ। अरे मक्ता शेर देखिए कि ना वो घर ही मेरा और ना ठिकाना है। ना वो घर ही मेरा और ना ठिकाना है। न जाने कौन से सहराओं में भटकता हूँ। न जाने कौन से सहराओं में भटकता हूँ। मक्ता है कि करामत उसकी थी, मेरा फकत हवाला था। वाह वाह वाह। करामत उसकी थी, मेरा फकत हवाला था। मैं खुद फरेबी के हाथों यूं ही बहता हूँ। मैं खुद फरेबी के हाथों यूं ही बहता हूँ। किताब जीस्त के औराक जब पलटता हूँ, कई वरक हैं कि जिन पर बहुत अटकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। वो अकरम एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल हमीद साहब का बतौर ख़ास, तो उन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और ये कि हमने इस महफिल को, इस बज़्म को 2 घंटे से अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये दिन बार बार लाए और खुदा हमारे वतन को न सिर्फ सलामत रखे बल्कि उसे वैसा बनाए जैसा बानी पाकिस्तान आज़म ने ख्वाब। आमीन आमीन। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। मैं बिशारत रिहान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेहमानों का एक शुक्रिया अदा कर दें रस्मी, जो इख्तितामी
शारद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम शोरा हजरात सामीन का इंतहाई तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने अपना वक्त सजाया और 14 अगस्त की इस बाबरकत दिन को 4 चांद लगाए। और अल्लाह ताला सबको ये यौम आज़ादी मुबारक करे और हमारे मुल्क को मजीद तरक्की और कामयाबी अता करे, इसी के लिए हम दुआ गो हैं। 4 चांद और 1 सितारा। 4 चांद और 1 सितारा। हाँ, वो सितारा कभी गुरूब नहीं होगा। जी अल्लाह ताला जी सबको सलामत रखे और तहे दिल से ममनून हूँ आप दोस्तों का कि आपने आके रौनक बख्शी और हमें इज्जत अफजाई, आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत ममनून। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी बैठक सजाई और इतने अच्छे तमाम लोगों को कर लिया कि हमीदी साहब की और हमीदी साहब सारी दुनिया से लोग जमा हो गए। हाँ हमीदी साहब, ये कारवान जारी रहना चाहिए, चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। अब इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग हो गई है अल्लाह के फजल से। अब इसकी जो हिस्से बखरे करके एडिटिंग करके तो इसको YouTube पे भी लगा देंगे और इनफरादी तौर पर भी तमाम दोस्तों को भिजवाऊंगा इंशाल्लाह। और देखिए अगले महीने भी एक बहुत अहम तारीखी दिन आ रहा है, यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर। बिल्कुल सही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर भी अगर ऐसी कोई महफिल आप आरास्ता कर लें तो फबेहा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तजवीज़ है। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको हौसला दे और हिम्मत दे और आपका ये अज़्म यूं ही कायम रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत बहुत ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।